बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स डिस्कस डिफरेंट बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. लास्ट वीडियो में मैंने आपको नियोप्लेसिया के बारे में, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर और नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन दे दिया था. अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. Benign form is squamous cell papilloma and malignant is squamous cell carcinoma. Second is basal cells of skin. Its malignant form is basal cell carcinoma. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने ऐड किया कि basal cell Nevis syndrome is a syndrome in which multiple basal cells syndrome occur. आपके पास एक सिंड्रोम होता है जिसको आप basal cell Nevis syndrome कहते हो, और ये इसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो basal cell होते हैं उनका कंबाइन एक सिंड्रोम होता है जो प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो basal cell Nevis syndrome in which the multiple basal cell syndrome occur. Epithelial lining of glands are duct. It is of three type: adenoma, papilloma and cystadenoma. एडिनोमा मैंने आपको बताया ग्लैंड्स फॉर्म में. पेपिलोमा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये बेनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म होते हैं, किसी भी सरफेस पे होते हैं, फिंगर लाइक फ्रॉन्ट्स होते हैं. सिस्ट एडिनोमा ओवरिस के अंदर होता है, हॉलोसिस्टिक मासेस होते हैं. मैलिग्नेंट फॉर्म आर एडिनोकार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा एंड सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोमा के बारे में पता होना चाहिए. इट कैन बी मस्कुलर, इट कैन बी कोलमनर, इट कैन बी डक्टल. इन ब्रेस्ट invasive ductal carcinoma, the invasive lobular carcinoma is present, and in ovaries adenocarcinoma may be serous, mucinous or endometrial. The fourth point is about respiratory passages. In bronchial adenoma, it is the benign tumor, while bronchogenic carcinoma is malignant. Renal epithelial renal tubular adenoma is benign. Renal cell carcinoma is malignant. Liver cell adenoma is benign. Hepatocellular carcinoma is malignant. Urinary tract epithelium, that is composed of transitional epithelium. Urothelial papilloma is the benign form, while urothelial carcinoma is the malignant form. In placenta, hydatidiform mole is benign, while choriocarcinoma is malignant. Testicular seminoma is malignant, and embryonal carcinoma is malignant. Seminoma is again exception because you can say oma is written and still it is considered malignant, not benign. And tumor of melanocyte, benign form is nevus and the malignant form is malignant melanoma. Let's talk about the other non-epithelial tissues. The first one is connective tissue and derivatives. Benign forms are fibroma, malignant fibrosarcoma; lipoma, benign, malignant liposarcoma; chondroma, benign, chondrosarcoma, malignant; osteoma, benign, osteogenic sarcoma is malignant. Fibroma fibrous tissue का होता है, lipoma adipose tissue का, chondroma cartilage का, osteoma bone का. हम एक एक को डिस्कस करते हैं. अच्छा, कुछ ट्यूमर्स होते हैं that are like tumor-like lesions that are fibrous tissue, but remember they are tumor-like lesions, they are not tumors. ठीक है. ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये ट्यूमर-like lesions हैं, ट्यूमर नहीं है. ठीक है. First one is nodular fasciitis. It is inflammation of fascia, usually occur in head and neck. Area is not more than 4 cm diameter. Benign form is fibroma and fibromatosis. It can be superficial or deep. Superficial included palmar or plantar or palmar. In palmar, for example, indubitan contracture. Second one is fibrohistocystic tumor. So fibrohistocystic tumor के लिए आप CD68 मार्कर को यूज करते हो. And third one is benign fibrous histiocytoma. Cartilage tumors की तरफ आते हैं. Cartilage tumors chondroma, enchondroma and chondroblastoma. Chondroma benign होता है, enchondroma भी benign होता है, but its origin is from marrow cavity. And chondroblastoma is aggressive and recurrent. Let's talk about the bone tumors. Benign is osteoma, that is benign. Osteoid osteoma, marrow cavity is present. Osteoblastoma भी benign होता है. And aggressive osteoblastoma is that type of bone tumor that is aggressive and recurrence में occur. Adipose tissue में दो तरह का होता है, lipoma benign होता है और liposarcoma malignant होता है. Endothelial and related tissues की तरफ आता है. फर्स्ट कैटेगरी कनेक्टिव टिश्यू की खत्म हो गई. एंडोथेलियल रिलेटेड टिश्यू में आता है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल जो होता है उसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है.
इसके अंदर हेमेंजियोमा आप इसकी बेनाइन फॉर्म को कहते हो, एंड इट कैन बी कैपिलरी, इट कैन बी कैवर्नस, हेमेंजियोसार्कोमा और एंजियोसार्कोमा इसकी मैलिग्नेंट फॉर्म होती है। लिम्फोसेल के अंदर लिम्फोजियोमा होता है, लिम्फेंजियोसार्कोमा उसकी मैलिग्नेंट फॉर्म है। मेसोथेलियम में मेनिंजियोमा होता है, मेसोथेलियोमा उसकी मैलिग्नेंट फॉर्म है। ब्रेन कवरिंग्स में इन्वेसिव मेनिंजियोमा उसकी मैलिग्नेंट फॉर्म है। इफ यू लेबल मेनिंजियोमा एज मैलिग्नेंट, आप मेनिंजियोमा बेनाइन फॉर्म है अगर आप लेबल करते हो इसका एज अ मैलिग्नेंट फॉर्म, तो आपको मेनिंजियोमा को अगर आपने मैलिग्नेंट लिखना है तो आपको एटिपिकल मेनिंजियोमा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मेसोथेलियम है जिसको आप मैलिग्नेंट कंसिडर कर रहे हो, अगर आप इस मेसोथेलियमा को बेनाइन मेसोथेलियमा लिखोगे तो इट इज़ नथिंग मोर देन सिंपली अ फाइब्रस ब्लॉक, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मेनिंजियोमा को अपने मैलिग्नेंट लेबल अगर करना है तो एटिपिकल साथ लिखना है, वैसे ये बेनाइन फॉर्म है। और मेसोथेलियमा आपके पास मैलिग्नेंट होता है, अगर आपने इसे बेनाइन लिखना है तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नथिंग मोर देन अ फाइब्रस ब्लॉक, तो आपने साथ बेनाइन मेसोथेलियमा मेंशन करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट ब्रेन। ब्रेन कवरिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेन में आपने ख्याल रखना है कि ब्रेन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट बोथ आर कंसिडर्ड मैलिग्नेंट। ग्लियल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपिडेंडिमल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स के ट्यूमर को आप एस्ट्रोसाइटोमा कहोगे, इट इज़ ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 2 जो होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के ट्यूमर को आप ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा कहोगे। एपिडेंडिमल सेल्स को एपिडेंडिमल मायोमा कहोगे, उनके ट्यूमर को। कोराइड प्लेक्सिस इज कोराइड प्लेक्सिस पेपिलोमा एंड कोराइड प्लेक्सिस कार्सिनोमा। ब्लड सेल्स एंड रिलेटेड सेल्स की तरफ जाते हैं, थर्ड कैटेगरी। हेमेटोपोइटिक सेल्स में रिमेंबर देयर इज नो बेनाइन, देयर इज ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दोज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कॉल्ड ल्यूकीमिया। For example, if we talk about WBCs, that is white blood cell respectively, and we are going to discuss in it neutrophil example. तो neutrophil में दो types होंगी, either it will be acute myeloid leukemia or chronic myeloid leukemia. Similarly, in lymphocytes, it will be acute lymphocyte leukemia or chronic lymphocyte leukemia. Lymphoid tissue जो होता है वो भी benign नहीं होता. Lymphoma is malignant. 2/3 lymph nodes होते हैं, 1/3 is from extra lymphoid. दो लिम्फोमास को हम डिस्कस करते हैं, वन इज कॉल्ड हॉजकिन लिम्फोमा, अदर इज वन इज कॉल्ड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा में ओरिजिन बी सेल्स होता है, दैट इज दे कंटेन द 5% विच स्टेम ब्लड सेल, हाइपरक्रोमैटिक होते हैं, डार्क सेल न्यूक्लिया होता है, क्रिपल्ड बी सेल्स होते हैं, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज कंपोज्ड ऑफ बी सेल, टी सेल एंड एल सेल। लेट्स डिस्कस मसल्स। फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बेनाइन ट्यूमर को आप लियोमायोमा कहते हो, इट इज द कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ यूट्रस, followed by skin, and malignant form is leiomyosarcoma. स्ट्रेटेड जो फॉर्म मसल्स की बेनाइन फॉर्म होती है उसको आप रेप्डोमायोमा कहते हो। रेप्डोमायोमा कॉमनेस्ट ट्यूमर होता है स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल का, एंड मैलिग्नेंट फॉर्म को आप रेप्डोमायोसार्कोमा कहते हो। अभी जो मैलिग्नेंट फॉर्म है स्ट्रेटेड मसल की जिसको आप रेप्डोमायोसार्कोमा कहते हो, ये एम्ब्रियोनिक भी हो सकता है, एल्व्यूलर भी हो सकता है, प्लियोमॉर्फिक भी हो सकता है, ठीक है। नर्व्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। नर्व्स के दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक को न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं, एक को शिवानोमा कहते हैं, एंड बोथ आर क्लासिफाइड or called as malignant peripheral nerve sheath tumor, that is MPNST. So both are malignant. That's all about the neoplasian nomenclature.